Now I am explaining blood circulatory system. The circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. Blood vessels are of three types: arteries which carry pure or oxygenated blood, veins which carry impure or deoxygenated blood, and capillaries which carry mixed blood. Capillary is the junction between arteries and vein. So now I am explaining structure and function of human heart. Location: not on the left side, but it is felt so. The heart is right in the center between the two lungs and above the diaphragm. Diaphragm is a muscular structure which separates thoracic cavity, means chest cavity, to abdomen. The narrow end of the roughly triangular heart is pointed to the left side, means heart is triangular in shape, and during working the contraction of the heart is most powerful at this end, giving a feeling that the heart is on the left side. Now I am talking about the covering. The heart in adult human is about the size of our closed fist. ये हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है. जितनी हमारी बड़ी बंद मुट्ठी का साइज़ है उतना ही साइज़ हमारे हार्ट का है. 12 centimeter in length and 9 centimeter wide. It is protected by a double-walled membrane covering called pericardium. It contains lubricating pericardial fluid which reduce friction during heartbeat and protect it from the mechanical injuries. तो जो पेरिकार्डियम है उसके दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हमारे हार्ट के फ्रिक्शन को से भी बचाता है हार्ट को, और प्रोटेक्शन भी करता है. Now talking about the chambers of the heart. The heart consists of 4 chambers: 2 upper atrium or atria, singular form is known as atrium or auricle, and 2 lower ventricles. The atria, also called auricle, have thinner walls because their major function is to receive blood from the body and pump it into the very next ventricle. तो जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं. ऊपर के 2 चैम्बर को हम एट्रिया या ऑरिकल बोलते हैं, और नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है. और एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका मेजर फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना बॉडी से सारा ब्लड यहीं पे आता है और उसके बाद इसको पंप कर देती है ये वेंट्रिकल में. The ventricle have thick muscular wall because they have to pump blood to long distance. इसी तरीके से वेंट्रिकल जो है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी मस्कुलर वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है, क्योंकि उसका काम क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना, ब्लड को पंप करना. The right ventricle pumps blood only up to the lungs for oxygenation, but the left ventricle pump it up to the farthest point in the body, such as up to the toes in the feet or up to the brain against gravity, and so its walls are thicker. Now I am talking about blood vessel entering and leaving the heart. कौन कौन सी blood vessels हैं जो heart में enter करती हैं और कौन है जो वहाँ से निकलती हैं. First one is blood vessel entering the heart. The right atrium receive 2 large vessels, anterior vena cava and posterior vena cava. तो राइट एट्रियम को अगर हम देखें, डायग्राम में भी देखें, तो इसमें 2 लार्ज वेसल्स आती हैं. एक तो एंटीरियर वेना केवा है और दूसरी है पोस्टीरियर वेना केवा. एंटीरियर वेना केवा इज ऑल्सो नोन एज सुपीरियर वेना केवा और प्रीकेवल. It brings deoxygenated blood from the anterior or upper region of the body including head, chest and arms. तो मैंने आपको पहले भी बताया था मैकेनिज्म जब मैंने समझाई थी कि जो एंटीरियर वेना केवा क्या होती है, वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो बॉडी का अपर पोर्शन है, हेड वाला, नेक वाला, चेस्ट और आर्म वाला, वहाँ से लेकर आती है. एंड सेकेंड वन इज पोस्टीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर और लोअर रीजन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग एब्डोमेन एंड लेग्स. तो पोस्टीरियर या इन्फीरियर वेना केवा क्या करती है, ये पोस्टीरियर यानी लोअर रीजन से, जैसे कि लेग वाला जो पोर्शन है, एब्डोमेन वाला, वहाँ से ब्लड लेकर आती है. द लेफ्ट एट्रियम रिसीव 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 फ्रॉम ईच लंग. लेफ्ट एट्रियम जो है हमारा वो 4 पल्मोनरी वेन्स को रिसीव करता है. एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स आती हैं लेफ्ट ऑरिकल में.
द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन मैंने आपको बताया था कि सारी वेन जो है वो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बट ओनली पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऐसी सारी जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी प्योर ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स लिविंग द हार्ट। कौन कौन सी वेसल्स हैं जो हार्ट से निकलती हैं? अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल आर टू लार्ज ब्लड वेसल। नंबर 1 पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी अरोटा है। द पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से निकलती है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू द लंग्स ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो सके। Second one is the aorta arise from the left ventricle and carries oxygenated blood to supply it to all parts of the body. तो दूसरी कौन सी है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अरोटा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट में देखा था कि बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Now I am talking about coronary artery. तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है 2 coronary arteries राइट एंड लेफ्ट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ एरोटा। एरोटा के बेस से 2 निकल रही है coronary artery, एक राइट है एक लेफ्ट है। दी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ये क्या करती है? हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उनको ये ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई करती हैं। व्हेन देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन एनी coronary artery और इन एनी वन और मोर ऑफ दीज देयर ब्रांचेस, देयर इज डेडनिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ द हार्ट मसल्स लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो अगर इसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में या उसकी ब्रांचेस में, तो डेडनिंग हो जाती है उस एरिया के हार्ट मसल्स की। इसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं, और अ हार्ट अटैक इन पॉपुलर लैंग्वेज, यानी कि इसी को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को ही हम हार्ट अटैक मानते हैं। द कोरोनरी वेन कलेक्ट blood from heart wall and pour it into the right auricle. Angina pectoris is the chest pain due to insufficient supply of blood to the heart muscles. तो angina pectoris क्या चीज़ है? ये चेस्ट में पेन जो होता है ये तब होता है जब हार्ट मसल्स को ब्लड की पूरी सप्लाई नहीं मिलती है। हार्ट इज़ अ बैंक कैशियर। द बैंक कैशियर हैंडल्स so much money every day, but what he can use for himself is only the salary he gets. It is not similarly true for the heart. It handles so much blood every minute, but it can use only that much which it gets through coronary artery supplying its muscular walls. Now I am talking about valves regulate the flow of blood in a single direction. There are 4 valves in the heart. Number 1 right atrioventricular valve, number 2 left atrioventricular valve, number 3 pulmonary seminal valve, and fourth one is aortic seminal valve. Right atrioventricular valve is located at the aperture between the right auricle and right ventricle. तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डोर है दैट इज़ नोन एज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इट हैज़ 3 थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप्स कप्स। तो ये जो डोर है ये आप समझ लीजिए कि इसमें 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे नॉर्मली डोर में 2 होते हैं वैसे इसमें 3 है। एंड इज़ देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसीलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। द एपाइसिस प्लूरल ऑफ एपेक्स ऑफ द फ्लैप आर हेल्ड इन पोजिशन बाई टेंडन्स कॉर्ड्स दैट इज़ नोन एज कॉर्डा टेंडनी। तो जिस तरीके से डोर में जॉइंटर होते हैं और जिससे डोर को कनेक्ट किया जाता है वॉल से, उसी तरह से यह जो वॉल्व होती हैं इनको कनेक्ट करने के जो जॉइंटर हैं दे आर नोन एज कॉर्डा टेंडिनी, अराइजिंग फ्रॉम द मस्कुलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल वॉल नोन एज पैपिलरी मसल्स। तो ये ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही एक डोर खुलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, जिससे कि जो ब्लड ऑरिकल का है वो सारा वेंट्रिकल में एक बार अगर आ गया नीचे डोर खुलने पे तो वापस लौट के नहीं जाएगा, क्योंकि ये वॉल्व 1 साइडेड होते हैं, इनका बैक फ्लो नहीं होता है।
Second one is left atrioventricular valve is located in similar way on the left side of the heart. It has two cups and it is therefore called bicuspid or also known as mitral valve. इसी तरीके से लेफ्ट साइड में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो डोर होता है उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं. यानी इसमें दो डोर हैं और इसको भी जॉइंटर कॉर्डा टेंडनी से ही अटैच किया जाता है. ये भी वन साइडेड है. ब्लैक फ्लो ऑरिकल से एक बार ब्लड आ गया वेंट्रिकल में तो वापस बैक नहीं फ्लो नहीं होता उसका. थर्ड वन इज पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व आर लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी में खुलते हैं ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व. दीज आर पॉकेट शेप्ड एंड 3 in number. Fourth one is aortic seminal valve are located at the point of origin of aorta from the left ventricle. तो ये aorta के origin पे होते हैं. These are also 3 in number and pocket shaped. Now I am talking about circulation of blood in the heart. इट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू एट्रिया और ऑरिकल. मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ऑरिकल या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है सिकुड़ता है तब हम इसको कहते हैं सिस्टोलिक कंडीशन और जब ये एक्सपेंड करता है फैलता है तब हम इसे बोलते हैं डायस्टोलिक कंडीशन. डायलेशन मीन्स वाइड हो जाना और सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. So now I am talking about circulation of blood in the heart. It starts with the contraction of two atria or auricle. The ventricle at this time are relaxing or dilating and are empty. Therefore, the blood from the atria passes into the ventricle easily. तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है सिस्टोलिक कंडीशन शो करता है तो वेंट्रिकल उस समय डायस्टोलिक कंडीशन शो करता है और सारा जो ब्लड है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाता है चला जाता है और वापस नहीं लौट सकता क्योंकि जो वॉल्व हैं दे आर वन साइडेड. नेक्स्ट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द एट्रिया रिलैक्स. अब जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा सिस्टोलिक कंडीशन होगी तो उस समय ऑरिकल जो है वो रिलैक्स करेगा उसकी डायस्टोलिक कंडीशन होगी. The blood from the ventricle under pressure tend to return to the atria, but the flap of the two cuspid, meaning pointed projection valves, get tightened and puffed up, thus closing the passage and preventing the return of blood. तो ब्लड का बैक फ्लो तो हो ही नहीं पाएगा. द कॉर्डा टेंडनी होल्ड द फ्लैप ऑफ द वॉल्व इन पोजिशन एंड प्रिवेंट देयर ओवरटर्निंग इनटू द एट्रिया. द ओनली कोर्स लेफ्ट फॉर द वेंट्रिकल ब्लड इज टू एंटर द पल्मोनरी आर्टरी. इसलिए अब ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाना पड़ेगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड द अरोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. The mouth of the pocket-like valve at the base of these two blood vessels face away from the ventricle. Therefore, the blood leaving the ventricle presses the valve flat and gets a clear passage in between. When the ventricle dilates, the blood from the pulmonary artery and the aorta tends to return. तो जब ventricle dilate करता है तो blood pulmonary artery से और aorta से वापस लौटता है. The blood fill the pocket of the valve and close the passage. Now I am talking about heartbeat. Step of heartbeat is known as cardiac cycle. Each heartbeat consists of two main steps. The atria contract first, followed by the contraction of ventricle. The contraction phase systole, that is systole, is followed by relaxing expansion phase, that is diastole. Each full beat of human heart lasts for about 0.85 सेकेंड. तो हार्ट बीट का टाइम 0.85 सेकेंड है. क्यों? क्योंकि सिस्टोल ऑफ एट्रिया ऑरिकल जो है वो 0.15 सेकेंड लेता है. सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल 0.30 सेकेंड लेता है एंड ऑल चैम्बर इन रिलैक्स स्टेट 0.40 सेकेंड. At the end of ventricular systole, the ventricle start relaxing, that is ventricular diastole. Meanwhile, the atria auricle have also been relaxing, atria diastole, and for a short period both the atria and the ventricle are in a relaxed state, joint diastole. The whole sequence of event in the heartbeat is called cardiac cycle. तो इस पूरी सीक्वेंस को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को सिस्टोल डायस्टोल को हार्ट बीट कहते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट साउंड लब एंड डब. इफ़ यू हियर योर हार्ट